Hello student, in the last part we have done the exercise 7.1. I hope ki you have done all the questions. So today we will start the new topic, some properties of the triangle. In the above section you have studied two criteria for congruence of the triangle. Let us now apply these results to study some properties related to the triangle whose two sides are equal. देखो जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है मीन्स इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो उसमें आइसोस्केल ट्राइंगल, इक्विलेटर में तो तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो आइसोस्केल ट्राइंगल है जिसमें टू साइड्स इक्वल है। तो आज हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कुछ न्यू चीज है। तो परफॉर्म द एक्टिविटी गिवन बिलो, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। से ईच इक्वल साइड इज 3.5 and third side equal to 5 centimeter. This side is 3.5, this side is 3.5 and this side is BC is 5 centimeter. So you have done such construction in earlier classes. So do you remember what is such a triangle called? मतलब two sides equal होती है, then the triangle is called the isosceles triangle. Then the triangle in which two sides are equal is called the isosceles triangle. So ABC figure 7.24 is isosceles triangle, then AB equal to AC. So measure the angle of B and C. B and C. Measure the angle. You observe that thing, that angle B equal to angle C. If side is equal, then opposite angle is also equal. AB side, then opposite angle C is also equal to angle B because AB and AC are equal. So a triangle ABC 7.24 is isosceles triangle, AB equal to AC. Now measure angle B and angle C. What you observe? Repeat this activity with other isosceles triangles with different sides. You may observe that in each such triangles the angle opposite to the equal side are equal. क्लियर, टू साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी ऑलवेज इक्वल होंगे आइसोस्केल ट्राइंगल में। क्लियर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज इंडीड ट्रू फॉर एनी आइसोस्केल ट्राइंगल, इट कैन बी प्रूव शोन बिलो। अब ये हमारी थ्योरम देखो आप 7.2, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल आर इक्वल। ये हमारी थ्योरम। कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में थ्योरम भी पूछ लेते हैं। तो this result can be proved in many ways. One of the proofs is given here. First, we make the diagram. It is a isosceles triangle. We are given an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC. We need to prove that angle B equal to angle C. क्योंकि अभी हमने अपर पार्ट में हमने कहा था कि अगर साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो अब हमको इसको प्रूव करना है। करें स्टार्ट। अब हमने एक एंगल A है, उस पे एंगल ए को बाइसेक्ट किया AD से, जो पॉइंट D जो है वो BC को D पॉइंट पे BC लाइन पे लाई करता है पॉइंट D। तो लेट अस ड्रॉ द बाइसेक्टर A एंड लेट बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड BC। मतलब A का भी बाइसेक्टर है और लाइन BC का भी बाइसेक्टर है। देन AB इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है, ये हमको गिवन है। BAD इक्वल टू CAD, BAD, this side, this angle and this angle equal because हमने कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल बाइसेक्ट किया है, that's why both A एंगल आर इक्वल। देन AD इक्वल टू AD, अब AD दोनों में कॉमन है ना? यस। देन BAD, this triangle BAD and ACD, CAD, these triangles are congruent to each other. Then angle ABC and CDA, then if congruency is proved, then we can each side and each angles are equal of the both of the triangle. Then angle B equal to angle C, then ABD equal to ACD, since they are corresponding angle of congruence of the triangle. corresponding angle हो गए ना, तो एंगल B equal to एंगल C, hence proof हो गया ना प्रूव। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्राइंगल लिया, उसमें टू साइड्स इक्वल है, तो अब हमको ये प्रूव करना है कि एंगल्स भी अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। हमने एक बाइसेक्ट खींचा
जो पॉइंट BC को D पे लाई करता है। बस हमने दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। देन उसके बाद में कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए, उसके बाद में एंगल B इक्वल टू एंगल C, बिकॉज ईच एंगल एंड ईच साइड ऑफ द टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। देन वी कैन से एंगल B इक्वल टू एंगल C बाय द सीपीसीटी रूल। अब construct the triangle ABC with BC of any length and angle B and angle C is equal to 50 degree. टू एंगल्स है वो 50-50 के। Draw the bisector of A and let intersect BC at D. अब हमको एक इंटरसेक्ट करना है जो BC को D पॉइंट पे लाई करे। अब हमको इसका रिवर्स है, वो पहले हमने साइड्स इक्वल थी और हमको एंगल इक्वल प्रूव करने थे। अब इक्वल एंगल है और हमको साइड इक्वल प्रूव करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वर्क है वही। What can you say about side AC and AB? Observe that AC covers AB completely, means both are equal. Then AC equal to AB. तो ये एक्टिविटी आप और मोर ट्राइंगल्स पे भी कर सकते हैं। अब आप देखो थ्योरम 7.3, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इक्वल। ये भी सेम आपने जो अभी 7.2 थ्योरम करी है उससे आप प्रूव कर सकते हैं। यू कैन प्रूव दिस थ्योरम बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। ABC ट्राइंगल ABC एंड बाइसेक्ट AD ऑफ एंगल A, मतलब एंगल A को बाइसेक्ट करता है D पे। एंगल A इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC। एंगल A जो है इज परपेंडिकुलर है साइड BC पे। शो दैट AB इक्वल टू AC और ABC इज आइसोस्केल ट्राइंगल। हमको ये प्रूव करना है। इसमें गिवन क्या क्या है कि बाइसेक्ट AD जो है वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल A है वो परपेंडिकुलर टू साइड BC पे है। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या क्या है। अब दो ट्राइंगल हैं ABC, ABD एंड ACD, टू ट्राइंगल्स। तो AD इक्वल टू AD दोनों में कॉमन है। दिस एंगल और दिस एंगल दोनों 90 डिग्री है बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री है। देन ये तो हमारे गिवन, हाँ, और AD दोनों में कॉमन है और BAD और CAD ये दोनों बाइसेक्ट करिए इसलिए भी ये दोनों इक्वल है। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, एक एंगल एक साइड और फिर एंगल। तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ABD एंड ACD कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। देन वी कैन इजीली से AB इक्वल टू AC बिकॉज बाय द सीपीसीटी रूल अगर दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई देन ईच साइड एंड ईच एंगल्स आर इक्वल। देन वी कैन इजीली से AB इक्वल टू AC। सो अगर AB AC के इक्वल है देन ABC इज अ आइसोस्केल ट्राइंगल और यही हमको प्रूव करना था। करें नेक्स्ट एग्जांपल। Example number 5. E and F are respectively the midpoint of equal side AB and AC. और हमको शो करना है कि BF इक्वल टू AC, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये इसके मिड पॉइंट है AB और AC के। तो देखो दो ट्राइंगल लिए हमने ABF, दिस वन, देन AFC, दिस ट्राइंगल, ठीक है। अब AB इक्वल टू AC है क्योंकि इक्वल साइड है, इसने बोल रखा है कि आइसोस्केल ट्राइंगल है और इक्वल साइड है, तो AB इक्वल टू AC। अब एंगल A इक्वल टू एंगल A दोनों में आ रहा है, दोनों ट्राइंगल्स में, यस। और AE इक्वल टू AF। अब देखो AE इक्वल टू AF क्यों हुआ, क्योंकि जब ये साइड्स इक्वल है तो उनका मिड पॉइंट है तो वो भी तो इक्वल ही होगा। अब जैसे पूरी ये 4 है तो इसका मिड पॉइंट हुआ यानी ये 2, तो इधर वाली भी 2 हो गई लेंथ उसकी। तो बस AF इज इक्वल टू AC, AF इज इक्वल टू AE, हाफ ऑफ द इक्वल साइड। देन ABF और ACE कॉन्ग्रुएंस हो गए बाय द SAS रूल। अब जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई देन आई कैन से कि BF इक्वल टू EC बाय द CPCT रूल और हमको यही प्रूव करना था। चलो एग्जाम्पल नंबर 6। इन द आइसोस्केल ट्राइंगल ABC, ये कोई ABC मेरा ट्राइंगल है, इसमें ये ABC, AB इक्वल टू AC गिवन है एंड E एंड D एंड E द पॉइंट ऑफ BC, देन BE इक्वल टू
सी डी, ये हमको गिवन है। अब हमको शो करना है कि ए डी इक्वल टू ए ई है, ये साइड भी इस साइड के इक्वल हो, हमको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिए ए बी डी दिस ट्राइंगल एंड ए सी ई दिस ट्राइंगल, बाहर साइड वाले दोनों ट्राइंगल। अब उसमें देखो ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमको गिवन है दोनों। देन एक एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि देखो जब ये साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी ए बी का अपोजिट एंगल सी इक्वल होगा और ए सी का अपोजिट एंगल बी इक्वल होगा, यानी बी और सी भी इक्वल होंगे, क्योंकि है तो वो एक ट्राइंगल की साइड ही है ना, इसलिए बी और सी भी इक्वल होंगे। और बी इक्वल टू बी ई इक्वल टू सी ई सी डी दिस, ये हमको गिवन है। बट रुको, अभी हमको क्या करना है, अब देखो डी दोनों में कॉमन आ रही है, तो अगर मैं दोनों में से डी माइनस कर दूं तो जैसे कोई साइड है 8, उसमें से आपने 5 माइनस कर दिया, और सेम दूसरी साइड है उसमें से भी आपने 5 माइनस कर दिया, दोनों में से इक्वल पार्ट माइनस करे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन बी माइनस डी इधर किया आपने, मतलब इस पूरी साइड में से आपने डी निकाल दिया और इस वाली साइड से भी आपने डी निकाल दिया, बीच वाला पार्ट। तो बस तो बी में से डी निकाला तो थोड़ा सा पार्ट क्या बच गया, बी डी, और इधर सी डी में से डी निकाला तो इधर बच गया सी ई। देन ए बी डी और ए सी ई कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। देन वी कैन इजीली से कि ए डी इक्वल टू ए बाय द सिंप्लिसिटी रूल। क्लियर? देखो बच्चों, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको क्वेश्चन की। एक बार आप 2 बार आप पढ़ोगे ना क्वेश्चन, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्राइटेरिया इसमें यूज लिया है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस मस्ट है। तो करें एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड ए सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी, यानी आइसोस्केल ट्राइंगल है, ए बी ए सी के इक्वल है, एंड द बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। मतलब बी और सी का जो बाइसेक्ट है, जैसे ये मेरा ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, ये गिवन है, और बी का जो बाइसेक्टर है और सी का बाइसेक्टर है वो ओ पे इंटरसेक्ट करता है, ये हमको गिवन है। अब हमको शो क्या करना है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब वेयर इज ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये हमको शो करना है। देन सेकंड पार्ट है हमारा ए ओ बाइसेक्ट ए, मतलब जो ए ओ है वो ए एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। करें स्टार्ट। सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी सी बाइसेक्ट एट ओ। तो अब ए बी सी इज आइसोस्केल ट्राइंगल, तो ये मेरा कोई ट्राइंगल था ए बी सी। अब इसमें जैसे ये ए बी और सी ये था, तो ए बी ए सी के इक्वल था। अब एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, जब और ये इसको बाइसेक्ट करा है, ये भी हमको गिवन है। तो अगर मैं हाफ ऑफ एंगल बी कर दूं, दोनों साइड में हाफ ऑफ एंगल सी एंड हाफ एंगल बी, तो ये एंगल हाफ ऑफ एंगल बी क्या हो जाएगा, आप देखो डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, आप कहोगे ओ बी सी, यस, तो ओ बी सी हो गया, ओ बी सी ओ सी बी के इक्वल आ गया, मतलब ये जो छोटा वाला पार्ट इधर इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। अब दोनों एंगल इक्वल आ गए तो अपोजिट साइड भी, मतलब जैसे इसका हाफ एंगल इक्वल आ गया ये वाला, तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए। जब साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। देन जैसे ओ बी सी इक्वल थी ओ सी बी के, तो ओ बी इक्वल टू ओ सी, और हमको यही प्रूव करना था कि अपोजिट साइड टू द इक्वल एंगल आर इक्वल। देन सेकंड पार्ट, अब ए ओ बी एंड ए ओ सी ट्राइंगल लिया मैंने, ए ओ बी, जैसे ये मेरा ट्राइंगल था ए बी और सी ऐसे था, और ये ओ पॉइंट था, तो मुझे ए ओ बी ये वाला ट्राइंगल लेना है और ए ओ सी इधर वाला लेना है। अब ए बी इक्वल टू ए सी, बिकॉज आइसोस्केल ट्राइंगल है तो दोनों साइड्स इक्वल है, ए ओ दोनों में ए ओ कॉमन है। देन ओ बी इक्वल टू ओ सी, अभी ओ बी और ओ सी मैंने इक्वल प्रूव कर दिया ना, एज प्रूव अर्लियर, यस। देन ए ओ बी और ए ओ सी कॉन्ग्रुएंस है, और कौन से क्राइटेरिया से, साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से। अब ये दोनों इक्वल प्रूव हो गए। देन बी ए ओ, अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, दोनों हाफ हाफ बराबर हो गए ना, मतलब ये 1 और सेकंड बी, यानी बी ए ओ और सी ए ओ भी इक्वल हो गए बाय द सिंप्लिसिटी रूल। और यानी अगर दोनों इक्वल हैं, जैसे ये कोई एंगल है, ये मेरा 40 डिग्री टोटल है, तो यानी ये 20 और ये 20, यही होगा ना इक्वल का मतलब, तो यानी अगर इक्वल है यानी वो बाइसेक्ट करिए उसको। देन ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, हेंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। क्लियर, समझ में आया ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 2, ABC एंड AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ BC, मतलब ABC मेरा ट्राइंगल है और AD मेरी परपेंडिकुलर है। अब हमको शो करना है कि ABC इज आइसोस्केल ट्राइंगल्स विथ AB इक्वल टू AC। सिर्फ हमको गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है और हमको शो करना है कि ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, मीन्स AB इक्वल टू AC है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में मेक द ट्राइंगल ABC एंड AD इज परपेंडिकुलर्स। अब हमको AB और AC को इक्वल प्रूव करना है। अब हमने दो ट्राइंगल लिए ADB दिस वन एंड ACD दिस वन, दोनों ट्राइंगल लिए। अब इसमें देखो AD के इक्वल है, दोनों में कॉमन है कि नहीं AD बीच वाली A B और C और ये D है, तो AD दोनों में कॉमन है, यस। उसके बाद में एंगल ADB और ADC दोनों इक्वल है बिकॉज 90 डिग्री है दोनों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, यस। और BD इक्वल टू CD, अब BD इक्वल टू CD बिकॉज ये बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलर है इसलिए। देन ये साइड, ये एंगल और ये साइड, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से मैंने ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ADB कॉन्ग्रेंस टू ADC, अब ये दोनों इक्वल हो गए, यानी AB इक्वल टू AC बाय द CPCT रूल, और यही हमको प्रूव करना था, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal sides. Okay, दोनों इक्वल है, साइड्स AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। अच्छा, इक्वल साइड्स AB और AC इक्वल हैं और ये हमने इस पे एल्टीट्यूड ड्रॉन किए, मीन्स 90 डिग्री, एल्टीट्यूड 90 डिग्री का होता है हमेशा। तो रेस्पेक्टिवली हमको शो दिस एल्टीट्यूड आर इक्वल, मतलब ये दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है, हमको ये शो करना है दिस वन के BE इक्वल टू CF है, ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, BE एंड CF आर एल्टीट्यूड और AC इक्वल टू AB है, ये हमको गिवन है। हमको प्रूव क्या करना है कि BE इक्वल टू CF है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने AEB और AFC, ABE दिस ट्राइंगल AFC, ये अपर ट्राइंगल लिए दोनों। अब देखो इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करूंगी, एंगल A इक्वल टू एंगल A, क्योंकि देखो एंगल A दोनों में कॉमन है कि नहीं, जैसे आपने ये ट्राइंगल लिए तो इसमें एंगल A दोनों में आ रहा था, तो एंगल A इक्वल। अब देखो ये वाले ट्राइंगल 90 डिग्री के थे, यस, बिकॉज बोथ आर ट्राइंगल, और AB इक्वल टू AC, अब AB AC के इक्वल है क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है। देन ABE और ACF कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई देन वी कैन इजीली से कि BE इक्वल टू CF, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया, देन BE इक्वल टू CF बाय द CPCT रूल, क्लियर। और हमको यही प्रूव करना था। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF are the sides AC and AB are equal. Show that ये एल्टीट्यूड है और AC and AB are equal, AB और AC इक्वल है, और हमको फर्स्ट ऑफ ऑल ABE एंड दिस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, एंड सेकंड AB इक्वल टू AC, ABC इज अ आइसोस्केल ट्राइंगल, मतलब उसका उल्टा पूछ लिया कि हमको AB इक्वल टू AC आइसोस्केल ट्राइंगल है कि नहीं, और प्रीवियस क्वेश्चन में हमको आइसोस्केल दिया था और वो दोनों इक्वल प्रूव करने थे। तो करें स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द डायग्राम, हमको गिवन क्या है कि BE इक्वल टू CF है। अब सबसे पहले हमने ट्राइंगल ABE लिया और ACF लिया, ये दोनों लिए। अब एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन है। सेकंड ABE ACF के इक्वल है बिकॉज ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है तो ये दोनों 90 के हैं, तो ये 90। और BE इक्वल टू CF हमको गिवन है, BE CF के इक्वल है, तो फर्स्ट तो ABE कॉन्ग्रुएंस टू ACF क्लियर हो गया, ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई, यस। अब जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई देन वी कैन डायरेक्टली से कि AB इक्वल टू AC। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए देन AB इक्वल टू AC बाय द CPCT रूल। अब जब AB AC के इक्वल है मीन्स दो साइड्स इक्वल है, तो यानी वो आइसोस्केल ट्राइंगल है, और हमको यही प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केल ट्राइंगल ऑन द सेम बेस, मतलब ये BC उसका सेम बेस है, उस पर दो आइसोस्केल ट्राइंगल है, मतलब टू साइड्स इक्वल है, इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल है और इसकी ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब हमको ये शो करना है कि ABD, ओके,
ए बी डी मीन्स ऐसे हम लाइन खींचेंगे तो ही एक ट्राइंगल ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा। हम इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो करें स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक द डायग्राम, देन ट्राइंगल ए बी डी मीन्स ये बड़ा वाला ट्राइंगल LHS वाला, एंड देन ट्राइंगल ACD, दिस वन ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2। अब देखो AD इक्वल टू AD, अब देखो AD दोनों में कॉमन है, स्ट्रेट लाइन, यस। अब AB इक्वल टू AC, अब AB देखो, AB इस ट्राइंगल का AB और इस ट्राइंगल के AC के इक्वल है, बिकॉज जो अपर पार्ट भी तो आइसोस्केल ट्राइंगल है, तो दोनों साइड्स इक्वल है। देन BD इक्वल टू DC, ये भी इक्वल है इसके, BD इक्वल टू, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है सेकंड वाला। देन ABD कॉन्ग्रुएंस टू ACD। अब जब ABD और ACD कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो गए, देन ABD और ACD बाय द CPCT रूल, उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया बाय द CPCT रूल, और हमको यही तो प्रूव करना था कि ABD ACD के इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक लाइन खींची, देन उसके बाद दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होने के बाद में हमने डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एंगल B एंगल C के इक्वल है बाय द CPCT रूल। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ABC इज आइसोस्केल ट्राइंगल्स इन विच AB इक्वल टू AC। ये कोई आइसोस्केल ट्राइंगल है, इसमें AB AC के इक्वल है। इस 7.34 डायग्राम देखो, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, मतलब इसको आगे ले जाते हैं तो ये D पे पॉइंट करती है, एंड सच दैट AD इक्वल टू AB, मतलब उसको इतनी आपने बढ़ाई है कि AB जितनी है उतनी ही आगे AD और है। अब हमको ये शो करना है कि एंगल BCD इज अ राइट एंगल। अब एंगल BCD, ये एंगल मेरा राइट एंगल है, हमको ये शो करना है। तो करें क्वेश्चन नंबर 6। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक द डायग्राम। अब देखो एंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल, अब इसमें AB इक्वल टू AC, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है, ये इसके इक्वल है, ये हमको गिवन है। अब ACB और ABC, अब जब ये इसके इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल है। अब मुझे लेना है ACD, ये वाला ट्राइंगल लेना है, क्लियर। अब ये वाला ट्राइंगल लिया मैंने तो AD AB के इक्वल है। अब AD देखो, ये AD AB के इक्वल है, ये दोनों साइड्स भी इक्वल थी क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब जब ये इसके तो ADC और ACD भी इक्वल हो गए, ADC और ACD ये वाले एंगल भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। अब एंगल इक्वल हो गए, ओके। अब मेरा ट्राइंगल ABC देखो, ABC, ये जो मेरा ABC ट्राइंगल फॉर्म हो रहा था, तो उसमें अगर तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, देन CAB ACB और ABC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब एंगल CAB को तो आप ऐसा कैसे लिख दो, लेकिन ACB और ABC भी इक्वल है, तो मैं ACB की जगह ABC की जगह ACB लिख सकती हूँ। तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, दोनों को ऐड कर सकती हूँ मैं, तो 2CACB हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। अब CAB कितना हो गया, इक्वल टू 180 माइनस 2ACB, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब मैंने दूसरा वाला ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ADC, सेकंड वाला जो ऊपर साइड में बन रहा है ना, जैसे दो ट्राइंगल आपने बनाए, ये ऊपर वाला। अब इसमें भी सेम ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी, तो CAD एंगल A, ACD एंगल C और ADC एंगल D, मतलब एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। अब CAD को आप ऐसा कैसे लिख दो, और ACD और ADC आपने इक्वल प्रूफ कर दिया अभी, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल था, तो इसको मैंने लिख दिया 2ACD इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको मैं इक्वल टू के इस साइड ले गई, तो CAD इक्वल टू 180 माइनस 2ACD, क्लियर। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये CAB एंड CAD, CAB एंड CAD। अब ये वाली लाइन देखो, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, तो उस पर एंगल सम मतलब लीनियर पैर में है, तो यानी एंगल का सम 180 डिग्री होगा, यानी CAB इक्वल टू CAD इक्वल टू 180 डिग्री। अब इक्वेशन CAB का है,
ये वाली देखो CAB और ये CAD है, दोनों को ऐड कर दो मैं तो 180 सम आ जाएगा। तो CAB प्लस मैंने किया CAD, दोनों को ऐड किया तो CAD की वैल्यू थी मेरी 180 माइनस 2 ACB, और सेकंड वाली इक्वेशन की थी 180 माइनस 2 ACD इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करो दोनों को, 180 और 180 LHS वाले ऐड करिए ऊपर में तो 360 हो गया, और ये -2 जो माइनस वाली टर्म एक साथ लिख दी इक्वल टू 180 डिग्री, इधर भी 180 है। अब देखो ये माइनस का है तो अगर इसको ये माइनस है मैं इसको पूरा का उस साइड ले जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको इक्वल टू के इस साइड ले गई और 180 को इस साइड ले गई, तो ये 360 माइनस 180 हो गया। और इधर क्या आ गया, 2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, अब 2 मैंने ले लिया तो उधर जाके प्लस हो गया, तो 2 ACB प्लस ACD, तो ये 360 माइनस 180 आ गया, और ACD और ACB तो BCD यानी एंगल ये C आ गया, तो BCD की वैल्यू आ गई 180 डिवाइडेड बाय 2 यानी 90 डिग्री। और यही मेरे को प्रूव करना था कि शो दैट द BCD इज अ राइट एंगल। देखो इसमें आपको कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे इसमें इक्वेशन कैसे बनाऊं कि मेरा 90 डिग्री है, और भी आप तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन में आपको स्टेप खुद से बनानी पड़ेगी कि मैं एक बार ये ट्राइंगल लेता हूँ, एक बार ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, ऐसे करके। तो आप खुद इक्वेशन बना के लास्ट में आपको प्रूव करना है कि BCD मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7। ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree and AB equal to AC. Find B and C. Okay. ये मेरा ABC मेरा कोई ट्राइंगल है और A मेरा राइट एंगल है। अब हमको B एंड C की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक और चीज़ इसमें गिवन है कि AB इक्वल टू AC है, AB इक्वल टू AC, ये दो चीज़ें हमको गिवन है। तो अब हमको B एंड C की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप खुद बताओ, A एंगल मेरा 90 हो गया, देन आइसोस्केल ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी वो दोनों एंगल साइड्स इक्वल है यानी वो एंगल भी इक्वल होंगे, यानी 90 180 में से 90 निकालो 90, यानी दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब देखो हमको गिवन क्या है, एंगल A इक्वल टू 90 और AB AC इक्वल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। अब एंगल B इक्वल टू एंगल C, क्योंकि अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने ट्राइंगल लिया ABC, तीनों एंगल का सम 180 होगा कि नहीं होगा ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से। तो A की वैल्यू मैंने 180 रख दी, सॉरी 90 रख दी। B एंड C की अभी मुझे पता नहीं है, तो मैंने क्या किया, अब देखो एक चीज़ मुझे गिवन है कि ये साइड इस साइड के एंगल है, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो मैं उसकी जगह दोनों की जगह एंगल B लिख सकती हूँ ना। तो एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू 180, अभी 90 इधर गया तो 180 माइनस 90 हो गया, और 2 एंगल B हो गया, तो 2 एंगल B इक्वल टू 90, और मुझे सिर्फ एंगल B की वैल्यू निकालनी है, यानी 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। अब B की भी वैल्यू 45, C की भी वैल्यू 45, और A की कितनी है, A की तो मुझे ऑलरेडी पता है कि 90 डिग्री है। क्लियर? तो ये यानी B और C की कितनी वैल्यू आ गई, 90 सॉरी 45 और A की 90 डिग्री। ये तो हमको गिवन थी क्योंकि वो राइट एंगल था। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 ईच। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स तीनों साइड्स इक्वल है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का। ओके, चलो ये ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तो हमको ये शो करना है कि वो उसका ईच एंगल 60 डिग्री होगा। देखो ये आपको बात पता है ऑलरेडी है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द इक्विलेटरल ट्राइंगल AB, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ईच साइड उसकी इक्वल होगी, AB AC के इक्वल एंड BC के भी इक्वल, तो AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। अब ईच साइड इक्वल है तो यानी उसका ईच एंगल भी इक्वल होगा, यानी A एंगल B एंगल C ऑल आर इक्वल। अब जब इक्वल हो गए तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी वी नो दैट ऑल थ्री एंगल सम इज 180 डिग्री, देन एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब तीनों की जगह मैंने एंगल A रख दिया एक बार, क्योंकि तीनों इक्वल है तो मुझे एक की किसी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना, तो मुझे क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। तो मैंने इसकी जगह भी एंगल A लिख दिया, इसकी जगह भी एंगल A लिख दिया, तो 3 एंगल A हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिवाइडेड बाय 3 यानी 60 डिग्री। अब एंगल A इक्वल टू 60, एंगल B इक्वल टू 60 और एंगल C इक्वल टू ऑल्सो 60, सबकी वैल्यू आ गई 60 और 60। सो अब तीनों 60 हो गए, यानी ये
इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और यही हमको प्रूव करना था। क्लियर? तो क्वेश्चन 8 फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में सम मोर क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल और एडवांस चीज हम देखेंगे। तब तक आपको सारे क्वेश्चन की जो आज हमने एक्सरसाइज की है उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बच्चों प्रैक्टिस मस्ट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो आप प्रैक्टिस करिएगा और नेक्स्ट पार्ट में हम पॉइंट 7.5 सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्राइंगल पढ़ेंगे। ओके बच्चों।